Hi guys, in this lecture I am going to solve a problem. So first I will read the question of the problem. The figure shows an epicyclic gear train. So this is epicyclic gear train. Okay. The wheel E, wheel means gear. Wheel E is fixed. The wheel E is fixed. So here wheel E, this one is wheel E. Here the speed of this wheel E is 0 because it is fixed. And wheel C and D are integrally casted. Here wheels C and D are integrally casted. Integrally casted means compound gears. Wheels C and D are integrally casted. It means integrally casted means compound gears. Here C and D are the compound gears. And mounted on the same pin. Pin means shaft. So since this C and D are compound gears, so they must mount on the same shaft or same pin. The meaning of pin is shaft only. Okay, pin means shaft only. Don't get don't get any confusions here. Mounted on the C and D are the integrally casted, means these two are compound gears and these two are mounted on the same pin, means same shaft. If arm A makes 1 revolution per second in counterclockwise, so this is arm A, so it is here they are given the speed of arm, that is 1 revolution per second in counterclockwise. So this arm A is rotating in anti-clockwise with a speed of 1 rps, that is 1 revolution per second. Determine the speed and direction of wheels B and F. So here you have to find out the speed of wheel B. So this is wheel B. Next we have to find out the speed and direction of wheel F. So this is wheel F. Okay, so this is the given question. So first we should write the given data. Okay, so here, and one more thing here, in this problem the number of teeth of all the gears or all the wheels is given in the figure only. The number of teeth of all the gears or the number of teeth of all the wheels is given in the diagram only. Here you can see that the number of teeth of wheel B is 20, number of teeth of gear D is 15, number of teeth of gear C is 35, number of teeth of wheel E is 20, and similarly for F is it is 30. Okay, so now I will write down the given data. Given that from the figure TB is equal to 20, so number of teeth of all the gears I am writing here. Here they have given the number of teeth of all the gears. This only I am writing here. This only I am this only I will write here. TB is equal to 20, TC is equal to 35, TD is equal to 15, T is equal to 20, TF is equal to 30. Here you can see that the wheel E is fixed. So wheel E is fixed means the speed of wheel E, is 0. यहाँ पे दिया हुआ है wheel E is fixed करके दिया हुआ है, तो इसका मतलब होगा wheel का स्पीड होगा 0. ओके, तो NE is equal to 0. यहाँ इस क्वेश्चन में व्हील E का स्पीड मतलब गियर E का स्पीड 0 दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है द व्हील E इज फिक्स्ड. तो इसका मतलब होगा व्हील E इज नॉट रोटेटिंग, व्हील E रोटेट नहीं हो रहा है, तो इसका स्पीड होगा 0. तो इसलिए NE इज इक्वल टू 0. ओके, नेक्स्ट, and wheel C and D are integrally casted and mounted on the same pin if the arm A makes 1 revolution per second in counterclockwise. So यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आर्म A का स्पीड दिया है. आर्म A का स्पीड जो है 1 रेवोल्यूशन पर सेकेंड है, 1 RPS है, और उसका आर्म A का डायरेक्शन क्या है, काउंटर क्लॉकवाइज है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज. तो इसका मतलब हुआ NA इज इक्वल टू +1 RPS. Arm A makes 1 revolution per second in counterclockwise. तो इसका मतलब हुआ NA is equal to 1 RPS plus 1 RPS because it is rotating in counterclockwise. So यही यहाँ पे लिखता हूँ.
यही यहाँ पे लिखा हूँ. सो हियर नेक्स्ट, determine the speed and direction of wheels B and F. So you have to find out the speed and direction of wheels B and F. आपको B और F का speed और direction find करना है. For that, यानी B is equal to question mark and F is equal to question mark. Now we have to again prepare the tabular column. Okay. So again same procedure. Serial number, condition of motion, revolution of elements. So to write the revolution of elements, again you have to make the sub columns. So first you have to see the how many elements are there or how many parts are there in the gear train. यहाँ पे कितने पार्ट्स है देखेंगे. गियर बी 1, ओके. गियर सी एंड डी आर द कंपाउंड गियर्स. यहाँ पे सी और डी है नहीं, कंपाउंड गियर्स है. तो इसको हम क्या करते हैं, दोनों को एक ही कॉलम में लिखते हैं. सी और डी कंपाउंड गियर्स है, तो इसलिए हम दोनों को एक ही कॉलम में लिखते हैं. ओके. 2 हो गए, 1 2, दोनों को एक कंसिडर कर रहा हूं मैं. 1 2. नेक्स्ट एक 3, ई इज 3 एंड एफ इज 4. तो टोटल 1 मोर आर्म. तो टोटल 5 एलिमेंट्स हो गए इधर, मतलब 5 सब कॉलम्स बनाना होगा आपको. और एक बार मैं बोलता हूँ, गियर बी 1, यहाँ पे गियर सी और डी दोनों कंपाउंड गियर्स है, तो मतलब दोनों को हम एक ही कॉलम में लिखेंगे. तो हम एक ही पार्ट करके कंसिडर करते हैं. बी 1 हो गया, सी और डी 2, ई 3, एफ 4 और आर्म 5. इट मीन्स वी हैव टू मेक 5 सब कॉलम्स हियर in the revolution of elements. 1 2 3 4 5. Okay, so 5 sub columns. So next first always you have to write the arm in the first sub column. In the second column you have to write the smallest gear in the this sub column. यहाँ पे आर्म के बाद छोटा गियर लेता हूँ, क्योंकि इस गियर ट्रेन में यानी इंटरनल गियर नहीं है. आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये गियर ट्रेन में इंटरनल गियर नहीं है. जब गियर ट्रेन में इंटरनल गियर नहीं रहता है तो आर्म के बाद हमेशा आपको स्मॉलेस्ट गियर लेना होगा. ओके. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और एक इम्पॉर्टेंट थिंग ये आप यहाँ पे स्मॉलेस्ट गियर कौन सा है, आपको नंबर ऑफ टीथ देखना पड़ेगा. उसको नंबर ऑफ टीथ देखना पड़ेगा. सो नंबर ऑफ टीथ देखो, डी के कम है सबसे. नंबर ऑफ टीथ ऑफ व्हील डी के कम है, 15 है. मगर व्हील डी जो है ना कंपाउंड गियर है. व्हील डी जो है ना कंपाउंड गियर है. यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर गियर ट्रेन में इंटरनल गियर नहीं है तो आर्म के बाद स्मॉलेस्ट गियर लिखना चाहिए. मगर इस गियर ट्रेन में स्मॉलेस्ट गियर जो है ना गियर डी है. ओके. बट गियर डी जो है ना कंपाउंड गियर है, तो गियर डी कंपाउंड गियर है, तो इसको हम छोड़ देते हैं. ये गियर डी को हम छोड़ देते हैं. ये छोड़ के और छोटा गियर कौन सा है वो देखेंगे. और ये गियर डी छोड़ के नेक्स्ट छोटा गियर जो है नी गियर बी भी है और गियर ई भी है. क्यों बोले तो दोनों के नंबर ऑफ टीथ सेम है. आप यहाँ पे देख सकते हैं, गियर बी के भी नंबर ऑफ टीथ 20 है, गियर ई के भी 20 है. मतलब गियर डी का नेक्स्ट छोटा गियर जो है नी बी और ई है. ठीक है. नो डाउट सबसे स्मॉलेस्ट गियर जो है नी गियर डी है, मगर यहाँ पे गियर डी जो है ना कंपाउंड गियर है, तो इसलिए हम आर्म के बाद इस गियर को नहीं लिख सकते, कंपाउंड गियर को नहीं लिख सकते. तो कंपाउंड गियर छोड़ के और छोटा गियर कौन सा है वो देखना पड़ेगा. कंपाउंड गियर छोड़ के नेक्स्ट छोटा गियर जो है नी 2 गियर्स हैं, गियर बी और गियर ई. क्योंकि गियर बी के भी नंबर ऑफ टीथ 20 है, गियर ई के भी नंबर ऑफ टीथ 20 है. तो आप आर्म के बाद गियर बी तो ले सकते हैं, नहीं तो गियर ई तो लिख सकते हैं. क्यों बोले तो दोनों स्मॉलेस्ट गियर है, आप दोनों में कौन सा भी गियर लिख सकते हैं. बट आफ्टर आर्म आई विल राइट गियर बी. मैं इस स्मॉलेस्ट गियर को कंसिडर करता हूँ, क्योंकि अगर मैं ये स्मॉलेस्ट गियर कंसिडर किया आर्म के बाद तो मुझे सीक्वेंस में लिखने आसानी होगी. मतलब सभी गियर्स एक साइड हो जाएंगे 1 by 1. और एक बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. यहाँ पे आर्म के बाद स्मॉलेस्ट गियर लिखना है.
स्मॉलेस्ट गियर तो डी है, मगर डी कंपाउंड गियर है, तो ये कंपाउंड गियर छोड़ के नेक्स्ट स्मॉलेस्ट गियर जो है वो लिखना है। नेक्स्ट स्मॉलेस्ट गियर ये है, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट गियर 2 गियर्स हैं, गियर बी है, गियर ई है, क्योंकि दोनों के नंबर ऑफ टीथ सेम है। 20 यहाँ पे भी है, 20 यहाँ पे भी है। तो बट यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, गियर बी को लिखता हूँ आर्म के बाद, क्योंकि अगर मैं गियर बी लिया तो बाकी गियर्स जो है ना मैं सीक्वेंस में लिख सकता हूँ 1 बाय 1, ठीक है। क्योंकि गियर बी अगर मैं लिया आर्म के बाद तो 1 बाय 1 गियर्स लिखने में मुझे आसानी होगी। अगर आप गियर ई लिए तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मगर आपको एक बार लेफ्ट हैंड साइड के गियर्स लिखना पड़ेगा, नेक्स्ट आपको राइट हैंड साइड के गियर्स लिखना पड़ेगा। ओके, तो इसलिए मैं आर्म के बाद गियर बी चूज करूंगा, यहाँ आर्म के बाद गियर बी चूज करूंगा, क्योंकि मुझे सीक्वेंस में नेक्स्ट सीक्वेंस में लिखने के लिए आसानी होगी। मतलब सभी गियर्स लेफ्ट राइट हैंड साइड है गियर बी के, तो इसलिए मुझे सीक्वेंस में लिखने आसानी होगी। आर्म के बाद नेक्स्ट स्मॉलेस्ट गियर जो है गियर बी है, तो उसको लिखा मैं। नेक्स्ट अभी आपको देखना पड़ेगा गियर बी किसके साथ मैच हो रहा है, वो नेक्स्ट कॉलम में लिखना है। गियर बी देखो यहाँ पे गियर बी गियर डी के साथ मैच हो रहा है, गियर बी है, ये गियर बी डी के साथ मैच हो रहा है। यहाँ पे सी और डी जो है ना कंपाउंड गियर्स है, ये दोनों आप डी सिर्फ डी एक ही नहीं लिख सकते एक कॉलम में, क्योंकि डी और सी कंपाउंड गियर्स है, तो इसलिए आपको दोनों को लिखना पड़ेगा, सी और डी को। गियर बी, और एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, गियर बी डी के साथ मैच हो रहा है, ओके, मगर डी जो है ना कंपाउंड गियर है, तो इसलिए नेक्स्ट कॉलम में आप सिर्फ गियर डी नहीं लिख सकते, आपको नेक्स्ट कॉलम में गियर सी और गियर डी दोनों को लिखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों कंपाउंड गियर्स है। तो वही यहाँ पे लिखा हूँ मैं, गियर सी डी, आप ऐसे लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट ये कंपाउंड गियर किसके साथ मैच हो रहा है ना, उसको नेक्स्ट कॉलम में लिखना है। यहाँ पे देखो ये दोनों कंपाउंड गियर्स है, गियर डी बी के साथ मैच हो रहा है, ये गियर बी ऑलरेडी यहाँ पे आप कॉलम में, गियर बी आप ऑलरेडी यहाँ पे कॉलम में लिख चुके हो, ओके। नेक्स्ट कंपाउंड गियर गियर सी, ये किसके साथ मैच हो रहा है वो देखो, ये गियर सी जो है ना ई के साथ मैच हो रहा है, तो नेक्स्ट कॉलम में आपको गियर ई लिखना पड़ेगा, यहाँ पे नेक्स्ट आपको गियर ई लिखना पड़ेगा, ओके। नेक्स्ट गियर ई किसके साथ मैच हो रहा है उसको नेक्स्ट कॉलम में लिखना है। गियर ई यहाँ पे देखो, गियर ई किसके साथ मैच हो रहा है, गियर ई एक सी के साथ भी मैच हो रहा है, एफ के साथ भी मैच हो रहा है, मगर सी आप ऑलरेडी कॉलम में लिख चुके हो, यहाँ पे आप सी ऑलरेडी कॉलम में लिख चुके हो, मगर ई और एक गियर के साथ मैच हो रहा है जो आपने कॉलम में नहीं लिखा है, ई एफ के साथ मैच हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ई एफ के साथ मैच हो रहा है, ये कॉलम में नहीं लिखे आप, तो अभी ये गियर को आप नेक्स्ट कॉलम में लिखो, आप यहाँ पे लिखें, ई के बाद एफ को लिखेंगे, ओके। ये हो गया आपका रेवोल्यूशन ऑफ एलिमेंट्स। नेक्स्ट आपको कंडीशन लिखना है। नेक्स्ट कंडीशन, हमेशा एज यूजुअल आर्म इज फिक्स्ड, मतलब आर्म को आपको 0 स्पीड देना है। नेक्स्ट आर्म के बाद गियर कौन सा है, गियर बी है, तो इसको +1 रेवोल्यूशन मोशन देना है, एंड गियर बी मेक्स +1 रेवोल्यूशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओके। तो ये कंडीशन के हिसाब से आपको सभी कॉलम्स फिल करना है। तो ये कंडीशन के हिसाब से आर्म का स्पीड होगा 0, ओके। नेक्स्ट गियर बी का स्पीड लिखना है, तो यहाँ पे आप गियर बी का स्पीड जो है नहीं +1 करके लिए ये कंडीशन के हिसाब से, तो ये कंडीशन के हिसाब से गियर बी का स्पीड होगा 1 +1 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओके। नेक्स्ट गियर सी डी, मतलब यहाँ पे कंपाउंड गियर्स है, मतलब 2 गियर्स है यहाँ पे आपको कंपाउंड गियर का स्पीड कैसे लिखना है बोले तो, कंपाउंड गियर का स्पीड कैसे लिखना है बोले तो, कंपाउंड गियर किसके साथ मैच हो रहा है उसको देखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपाउंड गियर सी ई के साथ मैच हो रहा है, डी बी के साथ मैच हो रहा है। कंपाउंड गियर्स यहाँ पे आप कंपाउंड गियर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, कंपाउंड गियर्स 2 गियर के साथ मैच हो रहा है। ये वाला गियर सी कंपाउंड गियर जो है नी ई के साथ मैच हो रहा है, डी जो है नी बी के साथ मैच हो रहा है, मगर ये कंपाउंड गियर का स्पीड लिखने के लिए, कंपाउंड गियर का स्पीड लिखने के लिए है नी
कंपाउंड गियर का स्पीड लिखने के लिए जो है नहीं, यहाँ पे ये दोनों कंपाउंड गियर्स बी के साथ भी मैच हो रहा है, ई के साथ भी मैच हो रहा है। मगर आपको कंपाउंड गियर का स्पीड लिखने के लिए जो है नहीं, ये दोनों में से कौन सा गियर कंसिडर करना है बोले तो प्रीवियस कॉलम में कौन सा गियर लिखे। यहाँ पे आपको कंपाउंड गियर्स किसके साथ मैच हो रहा है वो देखना है। यहाँ पे देखो कंपाउंड गियर्स दो हैं, सी और डी। देखो यहाँ पे सी ई के साथ मैच हो रहा है, डी बी के साथ मैच हो रहा है। मतलब कंपाउंड गियर दो गियरों के साथ मैच हो रहा है, बी और ई। मगर कंपाउंड गियर का स्पीड लिखने के लिए जो है नहीं, ये दो गियर्स के अंदर आप कौन सा गियर कंसिडर करना चाहिए बोले तो आप यहाँ पे कंपाउंड गियर से पहले कौन सा गियर लिखे हैं उसको कंसिडर करना पड़ेगा। मैं और एक बार बता रहा हूँ, यहाँ पे कंपाउंड गियर का स्पीड लिखने के लिए आपको यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कंपाउंड गियर्स किसके साथ मैच हो रहा है। सी और डी दो गियर्स हैं यहाँ पे कंपाउंड गियर्स। सी देखो ई के साथ मैच हो रहा है, डी देखो बी के साथ मैच हो रहा है। मतलब ये जो कंपाउंड गियर्स है ना, दो गियर्स के साथ मैच हो रहा है, बी और ई। मगर कंपाउंड गियर का स्पीड लिखने के लिए जो है ना, हमें दो में से एक गियर को कंसिडर करना है, बी या ई को। कंपाउंड गियर का स्पीड लिखने के लिए हमको गियर बी या ई को कंसिडर करना है, मगर बी ही कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कंपाउंड गियर के कॉलम से पहले कौन सा गियर लिखे आप वो देखना पड़ेगा। कंपाउंड गियर से पहले कॉलम में कौन सा गियर लिखे हैं बोले तो गियर बी लिखे हैं। तो गियर बी को ही मैशोराई करके कंसिडर करके आपको कंपाउंड गियर का स्पीड लिखना है। और एक बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो कंपाउंड गियर्स सी और डी बी के साथ भी मैच हो रहे हैं, ई के साथ भी मैच हो रहा है। मगर कंपाउंड गियर का स्पीड लिखने के लिए जो है नहीं, यहाँ पे कॉलम में कंपाउंड गियर से पहले कौन सा गियर लिखे है ना, उसके साथ मैच हो रहा है करके कंसिडर करके आपको कंपाउंड गियर का स्पीड लिखना है। कंपाउंड गियर बी के साथ भी मैच हो रहा है, ई के साथ भी मैच हो रहा है। मगर ये कंपाउंड गियर का स्पीड लिखने के लिए जो है नहीं, आपको प्रीवियस कॉलम में कौन सा गियर लिखे रहते नहीं, उसके साथ मैच हो रहा है करके कंसिडर करके आपको ये स्पीड लिखना है। ठीक है। अभी क्या हुआ, यहाँ क्या होगा, हम यहाँ पे कंपाउंड गियर का स्पीड लिखने के लिए हमको प्रीवियस कॉलम में जो गियर लिखे हैं उसको ही कंसिडर करना पड़ेगा। यहाँ पे गियर बी लिखा हुआ है प्रीवियस कॉलम में, तो गियर बी कौन से कंपाउंड गियर के साथ मैच हो रहा है ना, तो वो और ये गियर बी दोनों मैच हो रहे करके कंसिडर करके ये स्पीड लिखना है। यहाँ पे देखो डायग्राम में गियर बी कौन से कंपाउंड गियर के साथ मैच हो रहा है। गियर बी जो है ना डी के साथ मैच हो रहा है, यहाँ पे डी के साथ गियर बी जो है ना ये डी के साथ मैच हो रहा है। तो अभी यहाँ पे गियर बी और डी सेपरेटली लिखता हूँ मैं, गियर बी और डी ऐसे लिखता हूँ। तो यहाँ पे देखो कंपाउंड गियर का स्पीड कैसे लिखता हूँ बोले तो मैं यहाँ देखो कंपाउंड गियर का स्पीड कैसे लिखता हूँ बोले तो कंपाउंड गियर हम बी के साथ मैच हो रहा है करके कंसिडर किए हैं। तो इसके नंबर ऑफ टीथ न्यूमरेटर में ऊपर वाले में ऊपर के साइड कंपाउंड गियर हम बी के साथ मैच हो रहा है करके कंसिडर किए हैं, तो इसके नंबर ऑफ टीथ न्यूमरेटर में लिखो। ओके। और नेक्स्ट डिवाइडेड बाय कौन से गियर का लिख रहे हैं आप, कंपाउंड गियर का लिख रहे हैं। मगर यहाँ कंपाउंड गियर में दो गियर्स है सी और डी, कौन सा गियर कंसिडर करेंगे, तो आपको गियर बी किसके साथ मैच हो रहा है ना उसको कंसिडर करना पड़ेगा। यहाँ पे डिवाइडेड बाय टी बी होने के बाद डिवाइडेड बाय आप कौन से गियर का स्पीड लिख रहे हैं उसके नंबर ऑफ टीथ यहाँ पे लिखना पड़ेगा। मगर यहाँ पे दो गियर्स हैं कंपाउंड गियर्स में सी और डी, कौन से गियर के नंबर ऑफ टीथ यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिखेंगे, कौन से गियर के नंबर ऑफ टीथ लिखेंगे बोले तो यहाँ पे बी के साथ कौन सा गियर मैच हो रहा है वो देखना पड़ेगा। बी के साथ यहाँ पे देखो इस डायग्राम में बी के साथ डी मैच हो रहा है, बी के साथ डी गियर मैच हो रहा है, तो इसके नंबर ऑफ टीथ डिनोमिनेटर में लिखना है, डी के नंबर ऑफ टीथ डिनोमिनेटर में लिखना है। ओके। इनटू
इनटू कंपाउंड गियर कौन से गियर के साथ मैच हो रहा है करके कंसिडर करें हम, बी के साथ मैच हो रहा है करके कंसिडर किए हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड ये प्लस साइन छोड़ के इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। ओके, नेक्स्ट जो है ना ये साइन माइनस, ये माइनस साइन कैसा है बोले तो कंपाउंड गियर बी के साथ मैच हो रहा है करके कंसिडर किए हम। ठीक है, तो बी किसके साथ मैच हो रहा है, बी डी के साथ मैच हो रहा है। यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं, बी जो है ना डी के साथ मैच हो रहा है। तो कंडीशन के हिसाब से बी डी के साथ मैच हो रहा है करके कंसिडर किया हम। तो यहाँ पे मैं सेपरेट निकालता हूँ दोनों बी और डी। ओके, कंडीशन के हिसाब से गियर बी का डायरेक्शन क्या हुआ, प्लस है। गियर बी का डायरेक्शन प्लस है, मतलब गियर बी एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगा, कंडीशन के हिसाब से। यहाँ पे देखो गियर बी और गियर डी दोनों गियर एक्सटर्नल हैं, गियर बी और गियर डी दोनों एक्सटर्नल गियर्स हैं, मतलब दोनों एक्सटर्नली मैच हो रहे हैं। ओके, तो दो गियर एक्सटर्नल मैच हो रहे हैं बोले तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो गियर बी का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो गियर बी डी का डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो गियर डी का डायरेक्शन क्लॉकवाइज हुआ तो गियर डी का साइन क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पे इसलिए आपको माइनस लिखना पड़ेगा। तो ये होगा, इसका स्पीड होगा। नेक्स्ट गियर ई का स्पीड लिखने के लिए आपको गियर ई किसके साथ मैच हो रहा है वो देखना पड़ेगा। गियर ई देखो कंपाउंड गियर के साथ भी मैच हो रहा है और एफ के साथ भी मैच हो रहा है। ओके, यहाँ पे देखो गियर ई कंपाउंड गियर सी के साथ भी मैच हो रहा है और एफ के साथ भी मैच हो रहा है। मगर गियर ई का स्पीड लिखने के लिए गियर ई से पहले कॉलम में जो गियर लिखे हैं उसके साथ मैच हो रहा है करके कंसिडर करना पड़ेगा आपको। मैं और एक बार बता रहा हूँ, यहाँ पे गियर ई का स्पीड लिखने के लिए गियर ई किसके साथ मैच हो रहा है उसको देखना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं गियर ई कंपाउंड गियर सी के साथ भी मैच हो रहा है और एफ के साथ भी मैच हो रहा है। मगर गियर ई का स्पीड लिखने के लिए आप गियर ई से पहले कौन सा गियर लिखे हैं उसको देखना पड़ेगा। सी लिखे हैं या एफ लिखे हैं उसको देखना पड़ेगा। ई तो कंपाउंड गियर सी के साथ भी मैच हो रहा है, एफ के साथ भी मैच हो रहा है। मगर आपको दोनों में ये सी और एफ में ये देखना पड़ेगा कि ई से पहले कंपाउंड गियर लिखा है या एफ गियर लिखा है। यहाँ पे गियर ई से पहले कंपाउंड गियर सी लिखा है, तो गियर ई का स्पीड लिखने के लिए हम कंपाउंड गियर सी ही कंसिडर करेंगे, मतलब गियर ई सी के साथ मैच हो रहा है करके कंसिडर करेंगे। ओके, यहाँ पे गियर ई से पहले कंपाउंड गियर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए गियर ई कंपाउंड गियर के साथ मैच हो रहा है करके कंसिडर करके आपको यहाँ पे स्पीड लिखना होगा। गियर ई जो है नी सी के साथ मैच हो रहा है, कंपाउंड गियर सी के साथ मैच हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये गियर ई कंपाउंड गियर सी के साथ यहाँ पे मैच हो रहा है। गियर ई कंपाउंड गियर सी के साथ मैच हो रहा है। ओके, गियर ई कंपाउंड गियर सी के साथ मैच हो रहा है। तो इसके गियर सी के नंबर ऑफ टीथ न्यूमरेटर में लिखो ऊपर। आप कौन से गियर के लिख रहे हैं, गियर ई का स्पीड लिख रहे हैं तो उसके नंबर ऑफ टीथ डिनोमिनेटर में लिखो। गियर ई कंपाउंड गियर सी के साथ मैच हो रहा है तो इसलिए इसके नंबर ऑफ टीथ न्यूमरेटर में टीसी। आप कौन से गियर का लिख रहे हैं, गियर ई का लिख रहे हैं तो इसके नंबर ऑफ टीथ डिनोमिनेटर में। इनटू गियर सी किसके साथ मैच हो रहा है करके कंसिडर किया हम, कंपाउंड गियर सी के साथ मैच हो रहा है करके कंसिडर किया हम। तो ये कंपाउंड गियर का मैग्नीट्यूड, ये माइनस साइन छोड़ के ये जो मैग्नीट्यूड है यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा TB बाई TD इंटू 1। यहाँ पे देखो TB बाई TD इंटू 1 मल्टीप्लाई, ये साइन छोड़ के। ओके, यहाँ पे देखो ये प्लस साइन है। ये प्लस साइन कैसा है बोले तो यहाँ पे देखो गियर ई हम कंपाउंड गियर सी के साथ मैच हो रहा है करके कंसिडर किए हैं। ठीक है, गियर ई कंपाउंड गियर सी के साथ मैच हो रहा है करके कंसिडर किए हैं। ई सी के साथ मैच हो रहा है कंसिडर किए हैं। तो यहाँ पे देखो सी का डायरेक्शन, ये टैबुलर कॉलम में सी का डायरेक्शन जो है माइनस है। तो माइनस बोले तो सी का डायरेक्शन हुआ क्लॉकवाइज, माइनस है बोले तो सी, ये सी है
ये वाला सी है, सो सी का डायरेक्शन हो क्लॉकवाइज। यहाँ पे देखो सी और ई दोनों एक्सटर्नल मैश हो रहे हैं। जब दो गियर्स एक्सटर्नल मैश हो रहे हैं तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है। सी क्लॉकवाइज में घूम रहा है तो ई क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगा। ओके, सी गियर जो है नी क्लॉकवाइज में घूमा तो ई जो है नी एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगा। तो ये ई एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है बोले तो इसका साइन होगा प्लस। ई का गियर ई का साइन होगा प्लस बिकॉज इट इज रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज। कंडीशन के हिसाब से ई जो है एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है तो इसलिए इसका डायरेक्शन होगा प्लस। ओके, नेक्स्ट गियर एफ। गियर एफ का स्पीड लिखना है। गियर एफ का स्पीड लिखने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि गियर एफ किसके साथ मैश हो रहा है। गियर एफ जो है नी यहाँ पे देख सकते हैं आप, गियर एफ ई के साथ मैश हो रहा है। गियर एफ ई के साथ मैश हो रहा है। गियर एफ ई के साथ मैश हो रहा है तो गियर ई के नंबर ऑफ टीथ न्यूमरेटर में लिखो ऊपर। गियर एफ ई के साथ मैश हो रहा है तो इसके नंबर ऑफ टीथ न्यूमरेटर में लिखो ऊपर। डिवाइडेड बाय आप कौन से गियर का स्पीड लिख रहे हैं, गियर एफ का स्पीड लिख रहे हैं, उसके नंबर ऑफ टीथ डिनोमिनेटर में लिखो टी एफ। ओके, इनटू गियर एफ किसके साथ मैश हो रहा है, ई के साथ मैश हो रहा है। इसका मैग्नीट्यूड, ये प्लस साइन छोड़ के इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे प्रिंट नहीं आया हुआ, टी सी डिवाइडेड बाय ये टी ई है इंटू टी बी बाय टी डी इंटू 1। यहाँ पे देखो पहले आप गियर एफ ई के साथ मैश हो रहा है तो इसका नंबर ऑफ टीथ न्यूमरेटर में लिखे। आप गियर एफ का स्पीड लिख रहे हैं तो इसका नंबर ऑफ टीथ डिनोमिनेटर में लिखे। ओके, इनटू गियर एफ ई के साथ मैश हो रहा है तो ये पूरा मैग्नीट्यूड, ये साइन छोड़ के ये पूरा मैग्नीट्यूड यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे देखो माइनस साइन करके लिए, इसका जो पूरा साइन है माइनस साइन करके लिए। क्यों बोले तो एफ और ई एक्सटर्नली मैश हो रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं गियर एफ और ई दोनों एक्सटर्नल मैश हो रहे हैं, मतलब दोनों गियर एक्सटर्नल गियर्स हैं तो दोनों एक्सटर्नली मैश हो रहे हैं। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं ई का डायरेक्शन जो है प्लस लिए सो है। ई का डायरेक्शन जो है प्लस लिए सो है, मतलब ई का डायरेक्शन हो एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे आप देख सकते हैं ई का डायरेक्शन हो एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ पे देखो ई का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा तो एफ का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा बिकॉज दोनों एक्सटर्नली मैश हो रहे हैं तो दोनों के डायरेक्शन अपोजिट रहेंगे। तो एफ का डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो गया तो एफ का साइन होगा माइनस, तो वो माइनस साइन आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा माइनस। ओके, नेक्स्ट कंडीशन जो है सेम कंडीशन रहेगा, जहाँ पे +1 है वहाँ पे आपको प्लस एक्स से रिप्लेस करो। ओके, 0 0 है, +1 है प्लस एक्स, सो सेम वैल्यू यहाँ पे +1 है, यहाँ पे एक्स लिखे हैं, माइनस एज इट इज़। ओके, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे देखो ये यही वैल्यू है टी सी बाई टी, टी सी बाई टी, टी बी बाई टी डी, टी बी बाई टी डी इंटू 1 है यहाँ पे, वही यहाँ पे एक्स लिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखो टी ई, ये टी ई कैंसिल होगा। ओके, टी ई ये कैंसिल होगा। ओके, सो यहाँ पे क्या हुआ, टी सी बाई टी एफ माइनस टी सी बाई टी एफ इंटू टी बी बाई टी डी इंटू 1। अब यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ है, टी बी बाई टी डी इंटू 1। यहाँ पे टी ई कैंसिल होने के बाद जो भी यहाँ पे बचेगा वही यहीं पे लिखा हूँ मैं। ओके, ये +1 नहीं लिखना चाहिए, +1 के बदले में आप यहाँ पे एक्स लें। यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है, वही माइनस साइन यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे टी ई कैंसिल होके टी सी बाई टी एफ इंटू टी बी बाई टी डी, ये है, ये वाला जो है ना यहाँ पे लिखे टी सी बाई टी एफ, टी सी बाई टी एफ, टी बी बाई टी डी, टी बी बाई टी डी। ओके, यहाँ पे 1 है तो उसके बदले में एक्स लिया, यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे भी माइनस साइन। ओके, नेक्स्ट कंडीशन जो है ऐड प्लस वाई मोशन टू ऑल एलिमेंट्स, प्लस वाई सभी में ऐड कर दो। ओके, नेक्स्ट टोटल मोशन, इसको ऐड करके यहाँ पे टोटल लिखो, 0 + वाई। So this is nothing but NA. This will represent the speed of arm A. Okay. Next this plus this x plus y, ये जो कॉलम है गियर बी का स्पीड रिप्रेजेंट करेगा।
नेक्स्ट दिस प्लस दिस यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लियरली नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो कॉलम है ये कंपाउंड गियर को रिप्रेजेंट करेगा, एन सी डी ऐसे लिखा हुआ है, एन सी डी, ओके। नेक्स्ट दिस प्लस दिस यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस प्लस दिस यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस विल रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ गियर ई, ओके। सो नेक्स्ट दिस प्लस दिस, सो दिस विल यहाँ पे लिखता हूँ मैं, दिस विल रिप्रेजेंट द गियर ऑफ स्पीड ऑफ गियर एफ। ये जो कॉलम है गियर एफ का स्पीड है, तो इसलिए एन एफ यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ है, प्रिंट नहीं है यहाँ पे, यही यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। दिस प्लस दिस कर रहा हूँ, माइनस एक्स टी सी बाय टी एफ इंटू टी डी टी बी बाय टी डी, ओके, प्लस वाई। यहाँ पे जो इक्वेशन है यहाँ पे मैं क्लियरली लिखा हूँ, एन एफ इज इक्वल टू माइनस एक्स टी सी बाय टी एफ इंटू टी बी बाय टी डी प्लस, इसको ब्रैकेट डालो क्योंकि ये प्लस वाई अलग है, ओके। नेक्स्ट अभी क्या करना है, एज यूजुअल प्रोसीजर, गिवन और पहले गिवन और ए इक्वेशन के साथ कंपेयर करके एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करो, देन स्पीड ऑफ गियर बी और गियर एफ का स्पीड फाइंड करो, ओके। नेक्स्ट गिवन दैट एन इज इक्वल टू प्लस वन आरपीएस, यहाँ पे दिया हुआ गिवन में एन इज इक्वल टू प्लस वन। नेक्स्ट फ्रॉम टेबल एन इज इक्वल टू वाई, यहाँ पे टेबल में देखो आप एन इज इक्वल टू वाई, वही यहाँ पे लिखा है, ओके। दिस इज यहाँ पे दिस इज इक्वेशन नंबर 1 आई विल कंसिडर, एंड दिस आई विल कंसिडर एज इक्वेशन 2। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों के LHS सेम है, तो RHS को मैं इक्वल कर सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 192 y इज इक्वल टू 1, ओके। नेक्स्ट गिवन दैट n इज इक्वल टू 0, यहाँ पे देखो n इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो यही यहाँ पे लिखा हूँ मैं, n इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट फ्रॉम टेबल n इज इक्वल टू ए इक्वेशन, ये जो है नहीं यहाँ पे टेबल से लिया ये इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन यहाँ पे लिखा हूँ, ये इक्वेशन 4 करके लिया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं LHS सेम है, तो मैं दोनों राइट हैंड साइड को इक्वल कर सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 0 इज इक्वल टू ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो x का वैल्यू मालूम नहीं, मगर आपको यहाँ पे सभी के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, x 0 0 x एज इट इज, x का वैल्यू मालूम नहीं आपको, टीबी का वैल्यू मालूम है, टीसी का मालूम है, टीडी का मालूम है, टी का ही मालूम है, तो सभी वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, ओके। इसको ब्रैकेट डालो, प्लस 1 y का वैल्यू जस्ट नो यू हैव कैलकुलेटेड, ओके। यहाँ द वैल्यू ऑफ y यू हैव टू सब्स्टिट्यूट हियर 1, नेक्स्ट सिंप्लीफाई इट, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x, ओके। नेक्स्ट आपको स्पीड ऑफ व्हील बी फाइंड करना है, दिस इज स्पीड ऑफ व्हील बी, स्पीड ऑफ व्हील बी। ये व्हील बी का स्पीड फाइंड करने के लिए ये इक्वेशन जो है नहीं टैबुलर कॉलम से लिया हुआ है, मतलब स्पीड ऑफ व्हील बी इज नथिंग बट एन बी का इक्वेशन जो है ये टैबुलर कॉलम से लिया हुआ है, यहाँ पे एन बी इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ओके। यहाँ पे एक्स का और वाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आपको एन बी मिल जाएगा, ओके। यहाँ पे यूनिट मेंशन आरपीएस करके किया है क्वेश्चन में, तो इसलिए यहाँ पे भी आरपीएस। यहाँ पे देखो ये वैल्यू है आपको प्लस में आके पॉजिटिव में आ रहे हैं, तो इसलिए इसका डायरेक्शन हुआ, बी का डायरेक्शन हुआ काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, शॉर्ट में आप CCW भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपको स्पीड ऑफ व्हील एफ फाइंड करना है, स्पीड ऑफ व्हील एफ दैट इज मतलब NF फाइंड करना है। NF फाइंड करने के लिए NF का इक्वेशन टैबुलर कॉलम से लेंगे हम, NF का इक्वेशन ये वाला टैबुलर कॉलम से लेंगे, ये NF का वैल्यू, ये NF का इक्वेशन यहाँ पे यूज़ करना है, ओके। NF का इक्वेशन यहाँ पे लो और सभी के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, एक्स वाई सभी के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आपको NF का वैल्यू इतना मिलेगा, तो ये भी पॉजिटिव में है, तो इसलिए इसका डायरेक्शन होगा काउंटर क्लॉकवाइज। सो दिस प्रॉब्लम इज कंप्लीटेड।